Assalamu alaikum student. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start with the cholesterol biosynthesis. I hope you have already done the chemistry of cholesterol. So this is the burger. You all love this burger, yeah, which is consisting of all carbohydrate, proteins and fats. Fats कैसे होगा कि जिसमें ये बर्गर पेटी जो है which is full of proteins फ्राई हुआ होगा consisting of lipids, fat. So here is the clinical scenario. Please इस पे गौर करिएगा. A 47-year-old obese businessman. Obese means he's very fat, मोटा businessman था. Fond of cholesterol-rich diet, consulted medical specialist because of mild left side chest pain. क्योंकि बिजनेसमैन है, ज़्यादातर बैठा रहता है, obese है, he is only 47 years old और he is really fond of cholesterol rich diet. ठीक है, साइड पे माइल्ड लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन हुआ. He had family history of IHD, ischemic heart disease. His fasting serum cholesterol was 260 milligram per deciliter. ECG showed early ischemic changes. So he was diagnosed a case of cholesterol-lemia, hypercholesterolemia. Hyper means excess, ज़्यादा. cholesterol-lemia means blood में. ठीक है, तो ब्लड में उसका लेवल ज़्यादा आया. So atherosclerosis हमने कहा. Cholesterol chief role in pathological process cause defect in the gene of vital arteries causing cerebrovascular, coronary and peripheral vascular disease. Cerebrovascular means कि कोई stroke हो गया तो brain के vessels में, coronary heart के vessels में और peripheral vascular disease कोई भी peripheral vessels में clotting या atheromas बन जाना cholesterol accumulation की वजह से. So cholesterol is a friend or foe. हाँ, अगर excess में हो जाए तो then it will become a foe, enemy हो जाएगा हमारा, right? So cholesterol तो देखते हैं. आपको कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस पता हैं, केमिस्ट्री आप लोगों ने कर ली है. So here is the specific objectives क्या हैं आप लोगों के लिए. You should be able to know, explain the main steps involved in the synthesis of cholesterol molecule, discuss the regulation of intracellular cholesterol concentration in detail, means the role of HMG-CoA reductase. HMG-CoA reductase is the main enzyme in controlling the cholesterol synthesis. HMG-CoA reductase. So describe the mechanism governing cholesterol metabolism and excretion. So basically you have done the structure. I am not focusing on the structure here. Present in cholesterol है, कहाँ present होते हैं. सबसे पहले आपको मेरे इस lecture से पहले अपनी केमिस्ट्री थोड़ा सा रिकॉल करना है. कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है. एनिमल टिश्यूज़ में एब्सेंट है, प्लांट्स में. एनिमल टिश्यूज़ में प्रेजेंट है, सेल में है, तो सेल मेम्ब्रेन में कहाँ कहाँ है. ठीक है. सो 2 ग्राम पर kg बॉडी वेट कोलेस्ट्रॉल से आपका होता है. मेजर स्टीरॉल इन एनिमल टिश्यू, जहाँ भी ये OLI मीन्स अल्कोहल. कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट ईदर एज फ्री कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में होता है. So biological significance क्या है कोलेस्ट्रॉल की. Yes, it is an essential lipid constituent of cell membrane. Cholesterol is a precursor of steroid hormones and of bile acids. जब कोलेस्ट्रॉल की ब्रेकडाउन होती है वो आपको बाइल एसिड्स देते हैं, बाइल सॉल्ट्स देते हैं, और कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है इन दी सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन. इंटरमीडिएट जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का है उसमें एक इंटरमीडिएट वो हेल्प करता है फॉर दी रिक्वायर्ड है टू मेक विटामिन डी एंड फॉर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन में भी हेल्प करता है. हाई प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल प्रोमोट्स एथेरोस्क्लेरोसिस. ठीक है, आपको अच्छा अभी आपका शायद मैंने नहीं लिया लेक्चर, सेकेंड ईयर को पढ़ाया एथेरोस्क्लेरोसिस, तो आप उसमें देखेंगे कि कैसे कोलेस्ट्रॉल लीडिंग टू एथेरोस्क्लेरोसिस. So what are the sources of this cholesterol?
कोलेस्ट्रॉल इज ड्रिवन फ्रॉम कहाँ कहाँ से। एक तो सबसे पहले याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर भी मशीनरी लगी हुई है जो कि चीज़ें बनाती है, राइट। और हम बाहर से भी खाना खाते हैं, तो बॉडी के अंदर हर चीज़ की मेजॉरिटी चीज़ों की दो सोर्सेज हैं। देयर आर टू सोर्सेज, one is external source, that is from the diet, the other one inside the machinery you are going to make anything। तो इस अंदर की सिंथेसिस को हम कहते हैं de novo synthesis, how cholesterol is going to synthesize inside our body। So more than half the cholesterol of the body arises by synthesis and remainder is provided by the average diet। ठीक हो गया। सो सोर्सेज एंड फेट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कहाँ कहाँ से अब आप कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं। सबसे पहले डाइट की अगर मैं बात करूँ तो डाइटरी सोर्सेज में बटर, मक्खन खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं, एग योक, येलो एग योक, ब्रेन मसाला खाते हैं जाके जब आप बाहर हैं, राइट, मीट, गोश्त एंड एनिमल, ऑल कंसिस्टिंग ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बॉडी में कहाँ इसकी हो रही है डिनोवो सिंथेसिस? इन द लिवर। लिवर में मशीन लगी हुई है जो कि धड़ाधड़ आपका कोलेस्ट्रॉल बनाती है। ठीक हो गया। और आप और कहाँ से लेते हैं? कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से भी कोलेस्ट्रॉल जमा होकर आके लिवर में आ रहा होता है। और कोलेस्ट्रॉल से आप पीते क्या क्या हैं? सिक्रीशन ऑफ HDL एंड VLDL में भी कोलेस्ट्रॉल जाता है, इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और अनमॉडिफाइड फ्री कोलेस्ट्रॉल सिक्रीटेड इन बाइल, ठीक है, एंड कन्वर्जन टू बाइल एसिड्स एंड बाइल सॉल्ट। और भी क्या है, बल्कि हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टीरॉयडल हार्मोन्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। सो टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल सीरम में क्या है? नॉर्मल, याद रखिएगा बेटे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नॉर्मल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनसाइड द बॉडी, ठीक है, अप टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। किसी की रिपोर्ट देखें जहाँ पे 239 या उससे थोड़ा सा आगे हो तो दिस इज़ द बॉर्डर लाइन, और मोर देन 240 हो तो आप उसे बता देंगे कि आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर, तो आप प्लीज़ डाइट को कंट्रोल करें जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक हो गया। तेल की बनी हुई चीज़ें कम खाएं, नमक कम लें, ठीक है, इतना भी जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो वो आपने कम करा दें। So cholesterol synthesis. Today we are going to do the cholesterol synthesis. You all know the structure of cholesterol per hydro cyclopentano-phenanthrene structure consists of 4 fused ring. ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। 27 कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल कंटेन्स आ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C3 पे देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड है बिटवीन C5 एंड C6, C5 और C6 के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8th मेंबर्ड हाइड्रोकार्बन चेन एट C17 पे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन है, मिथाइल ग्रुप C10, C13 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, पर हाइड्रो पेंटेनोफेनेंथ्रीन स्ट्रक्चर। जब मैंने लिखा था डिटेल्स ऑफ स्टेप्स, एसिटाइल कोहे एक्ट्स एज अ प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, याद रखिएगा आपके पास ये एसिटाइल कोहे होगा तो फैटी एसिड सिंथेसिस हो सकती है बॉडी में और कोलेस्ट्रॉल। याद रखिएगा नंबर 2, व्हेन एवर यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, जो कि कहाँ से लिया आपने? डाइटरी कार्बोहाइड्रेट से, देन यू आर गोइंग टू मेक एम्पल अमाउंट ऑफ फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, योर ओन, आपकी बॉडी के अंदर की मशीन वो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल बना रही है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कौन सी कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड सिंथेसिस होती है बॉडी में? आप सब ने कहना है वेल फेड कंडीशन। वेल फेड कंडीशन व्हेन यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी, राइट, गुड, शाबाश। उसके बाद अब क्या हुआ? अब आपने कहा मैम ये C4 तो उधर चला गया, अब ये C2, अब हमने पहले कार्बन को करके साथ साथ हम इनके नाम याद करेंगे। आपने प्लीज़ ये स्ट्रक्चर याद नहीं करने, आपने सिर्फ नाम याद रखने। C2 एसिटाइल कोए प्लस एसिटाइल कोए मीन्स C2 plus C2 is equal to C4, right? So you will get what? C2 plus C2 is equal to C4.
4, 1 2 3 4, और ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है इन्हें हम कहते हैं एसीटो एसीटेट और एसीटो एसिटाइल को ए जब इसके साथ आके लग जाएगा, एसीटो एसीटेट और एसिटाइल को ए। आप कहेंगे मैम ये कैसे हुआ, ये सारा ये जो था C2 जाके C3 के साथ कंबाइन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ थायोडेज एंजाइम। ठीक है, तो 1 2 3 4 यू विल हैव नाउ C4 एसीटो एसीटेट। फिर अगेन ये C2 लगा एसिटाइल को ए, फिर आके 4 + 2 6, अब 6 बन जाएंगे। ठीक है ना, वेरी गुड, शाबाश। पहले आपने क्या किया, ये एसिटाइल को ए एक आया, फिर दूसरा आया, तो जब ये दोनों मिल गए अब ये आई जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिट्रेट ये दे रहा है, एसिटाइल को C2 दे रहा है, और सिट्रेट ये कहाँ से आ रहा है, ऊपर से, वेलफेट कंडीशन ग्लूकोज, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस, ज़्यादा से ज़्यादा TCA, so you don't need further ATP, then this citrate comes out of this mitochondria into cytosol. Now it again break down into C2 and C4. ये C2 आपका इधर आ गया, फिर एक और C2 आया, वो इधर आ गया, दोनों ने मिलके क्या बनाया, C4, और ये C4 है एसिटो एसिटेट और एसिटाइल को ए, एसिटो एसिटाइल को ए। अगेन फिर एक और C2 आया, तो कितना बन गया, अब ये कब बना, HMG को ए सिंथेस की प्रेजेंस में 4 + 2 हुआ, तो यू विल गेट C6 HMG को ए। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, उसे आइसोमराइज किया थोड़ा सा, ठीक है, रीड्रॉ किया, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया, दैट इज दी 3 हाइड्रोक्सी। अब ये देखो 3 कार्बन पे क्या है, हमेशा इस तरफ से काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, 3 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी है, तो 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, और 6 कार्बन को क्या कहते हैं, ग्लूटेरिक एसिड, तो ग्लूटराइल को ए। ठीक है, 2 + 2 4 एसिटोएसिटेट, then again 4 + 2 6 in the presence of HMG CoA synthase enzyme, क्योंकि हम HMG CoA बना रहे हैं। What is HMG CoA? 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटेरिक एसिड और ग्लूटराइल CoA। ठीक हो गया। सो दिस एंजाइम HMG CoA सिंथेज की प्रेजेंस में HMG CoA बनाया। फिर हम आगे गए, देखो अब पीछे से लेकर आऊँगी, याद रखना है, ये C2 पहला वाला C2 क्या बन गया, C4 एसिटो एसिटेट और एसिटो एसिटाइल CoA। अगेन एक C2 आया, तो क्या बन गया, C6, दैट इज दी HMG CoA सिंथेज की प्रेजेंट में, सॉरी उसकी प्रेजेंट में HMG CoA बन गया, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल CoA। वेरी गुड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, HMG CoA ये आ गया। अब this is the enzyme that is the HMG CoA reductase. This is one of the most important enzyme for the synthesis of cholesterol in our body, and this step is the rate limiting step. जब भी मैं कहूँगी rate limiting step, जब भी मैं कहूँगी it is a committed step, means कि ये पूरा का पूरा step कंट्रोल कर रहा है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को हमारी बॉडी में। क्यों मैम, बिकॉज इसी एंजाइम पे ड्रग्स बनी है, दैट इज़ दी स्टैटिन ड्रग्स। जितनी भी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को बॉडी में कंट्रोल करती हैं, वो कौन सी हैं, एनालॉग HMG CoA रिडक्टेज का। ठीक है, एटोरवेस्टेटिन, लोवेस्टेटिन, मिवेस्टाटिन, प्रीवेस्टेटिन, ठीक है, सेमवेस्टेटिन, जितनी भी स्टैटिन ड्रग हैं वो इसकी एनालॉग। ठीक हो गया। अब इसमें क्या हुआ, HMG CoA, हाँ, in the presence of HMG CoA reductase it is converted into mevalonic acid। पहले क्या था, पहले ये एल्डिहाइड में था, जो कि अब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मेवलोनिक एसिड में। ठीक है, ये क्योंकि रिडक्टेज है, मींस यू नीड 2 रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन में, दैट इज़ 1 NADPH, एक रिएक्शन में फिर NADPH, मीन्स इस एसिड को आपने कन्वर्ट किया पहले एल्डिहाइड में, रिड्यूस किया तो NADPH रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से, फिर दूसरे में अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। सो हाउ HMG CoA टू मेवलोनिक एसिड, अगर मैं एग्जाम में आपको देती हूँ या मैं आपकी असाइनमेंट्स देती हूँ कि राइट डाउन दी रेट लिमिटिंग स्टेप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो यू आर गोइंग टू एक एक स्टेप मुझे बताना है इसमें।
ठीक है, कि ये स्टेप कहाँ हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप में क्यों कह रही हूँ, तो पॉजिटिव इसके कौन कौन है, नेगेटिव इसको कौन कौन कर रहा है, ठीक है। और ये रिड्यूसिंग है तो आपने मुझे ये सारे कितने NADPH रिएक्शन में चाहिए, 2, ठीक है, तो 2 NADPH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है एंड यू विल गेट व्हाट, मेवेलोनिक एसिड। सो सेकंड में कहते हैं, ठीक है, ये कौन सा स्टेप आ गया, अगला फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। अब कितने कार्बन थे, 6 सॉरी, ठीक है, 6 कार्बन थे HMG CoA को हमने मेवेलिनिक एसिड में कर दिया, तो इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब आपने कहा कि अब मेवेलिनिक एसिड इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। हाउ, अगर इस 6 में से मैं एक माइनस कर दूं, दैट इज दी डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है, तो एक कार्बन निकल गया, यू विल हैव नाउ 5 कार्बन हेयर। और क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ 3 ATP, मीन्स के तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें खर्चा करना पड़ रहा है, 3 ATPs लगाई हैं हमने इस पर, राइट, 3 ATP लगा के देन यू विल गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग, देखो पायरोफॉस्फेट आ गया, बड़ा हाईली एनर्जी कंपाउंड है, लेकिन ये कितने कार्बन हो गए, 5। प्लीज़ आपने ये वाले स्ट्रक्चर याद नहीं रखने, आपने सिर्फ ये वाले नाम याद रखने, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट विच इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड हैविंग 2 पायरोफॉस्फेट। इसको थोड़ा सा आप आइसोमराइज करते हैं तो आइसोप्रीन्स, ठीक है, ये आइसोप्रीन्स, ये कॉस्मेटिक्स में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो ये भी 5 को इसको थोड़ा सा अरेंज किया, तो अब ये क्या बन गया, डाई मीथाइल, मीन्स कि इस कार्बन के साथ 2 मीथाइल ग्रुप लग गए, डाई मीथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। वन इज द आइसोपेंटेनाइल, पेंटा ग्रुप होते हैं ना 5 कार्बन, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, और इसको आपने आइसोमराइज किया तो डाई मीथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। कार्नेसाइल है ना 15 वाला, कहता है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी आपको मैंने बताया है कि वन ऑफ द इंटरमीडिएट दे हेल्प अस टू गिव इंटरमीडिएट्स, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है कार्नेसाइल से डॉलीफॉल या ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं, ठीक। तो यूबिक्विनोन का नाम आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी किया है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP इन द रेस्पिरेटरी चेन। आपको एक बात बताऊं, अभी बिल्कुल लेक्चर मेरा बड़े आराम से सुने, हम पेशेंट को बीइंग एज अ डॉक्टर, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उन्हें स्टैटिन ड्रग्स देते हैं, यानी कि एंटी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ड्रग देते हैं, ठीक है। अब बेटे इसमें ये आया था कि ये पेशेंट की कंप्लेन है कि हमें ये ड्रग गोली खाने के बाद, टैबलेट लेने के बाद बहुत सिवियर मस्कुलर पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि हमने ये गोली नहीं खानी। तो वो बेसिकली करता क्या है कि गोली जो है ये फार्नेसाइल डाइफॉस्फेट, ये उसको उसकी सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है, जबकि फार्नेसाइल क्या बना रहा है, यूबिक्विनोन बना रहा है, और यूबिक्विनोन ने किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या बनाना है, ATP बनाना है। तो सम पेशेंट ऑन HMG CoA reductase inhibitors, that is the statin drug, experience severe muscle weakness because the statin restrict the formation of ubiquinone, ठीक है, सप्लीमेंटेशन मस्ट बी बेनिफिशियल। तो इसके साथ आपने कोई ना कोई यूबिक्विनोन या क्यू आपने 30 कार्बन से स्क्वेलिन पे कैसे ऑक्सीजन एपॉक्साइड ने इफेक्ट करके ये जितने भी आपकी ओपन साइक्लिक चेन थी उसको क्लोज किया, इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्वेलिन ऑक्सीडेज नाउ यू विल गेट लेनोस्टीरॉल। लेनोस्टीरॉल में याद रखिएगा यू विल रिमूव द 3 मिथाइल ग्रुप, प्रोड्यूस ये आपने 24 डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया, आइसोमराइज किया ये बॉन्ड प्रोड्यूस ये 7 और 5 को, you will get what, 7 dehydrocholesterol, ठीक है। so this is the summary, क्या, वेरी गुड, चलो सारे मेरे साथ बोलो, वेल फेड कंडीशन थी, शाबाश, मोर एंड मोर ग्लूकोज था सेल में, ग्लाइकोलिसिस हुई, ठीक है, TCA साइकिल हुई माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड योर बॉडी सेड नो नीड फर्दर अमाउंट ऑफ ATP, तो फिर रिवर्स चला गया, रिवर्स में क्या था, एसिटाइल CoA 2 कार्बन कंपाउंड, इधर से ऑक्जेलो एसीटेट, उसमें क्या बना रही थी, सिट्रेट, तो ये सिट्रेट क्योंकि ये एसिटाइल CoA दे कांट बी एबल टू ट्रांसफर फ्रॉम दिस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये सिट्रेट ये इजीली ट्रांसफ़र हो सकता था, साइटोसोल में आया, यहाँ पे अगेन दिस citrate is converted into, break down into C2 and C4, very good, this C4 again enter into the TCA cycle, oxaloacetate, ये C2 क्या है, acetyl CoA, 2 plus 2
एसिटो एसिटाइल कोए, वेरी गुड. एंड 4 + 2 6. 6 क्या है? HMG कोए इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोए सिंथेज, वेरी गुड. नाउ HMG कोए सिंथेज, तो ये था ये HMG कोए रिडक्टेज. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन विच यू विल गेट फॉर मेवेलिनिक एसिड. ठीक है, कि इसमें था आपके एसिड को हमने अल्कोहल में कन्वर्ट किया. ठीक है, एल्डिहाइड एंड देन अल्कोहल, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, फिर यहाँ पे जो 6 था वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ और इन द प्रेजेंस ऑफ 3 ATP यू विल गेट व्हाट? आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट. इनकी आइसोमराइजेशन हुई डाई मीथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट. ठीक है, फिर इन दोनों को साथ ले आए, 5 + 5 10. 10 इज दी जेरेनाइल, शाबाश, वेरी गुड. हेड टू टेल हुआ. जब हेड टू टेल होगा इसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल आएगा, वो हेल्प करेगा उसको अटैच करने में. देन अब ये 10 प्लस एक और आइसो पेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट के साथ इसे किया तो फार्सेनाइल 15 कार्बन कंपाउंड. देन 15 + 15 यू विल गेट स्क्वेलिन 30 कार्बन कंपाउंड. देन स्क्वेलिन में क्या हुआ? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हुआ, उसने एपॉक्साइड, उसने सारी साइक्लिक जो ओपन थी उसको क्लोज किया इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्वेलिन ऑक्सीडेज. ठीक है, देन यू विल गेट लेनोस्टीरॉल. लेनोस्टीरॉल में 3 बातें याद रखनी है. कौन कौन सी आपने बातें याद रखनी है कि रिमूव करने? 3 मीथाइल. ठीक है, उसके बाद आपने डबल बॉन्ड जो 24 है उसको रिड्यूस करना है, और उसके बाद जो डबल बॉन्ड आपने 5 और 6 में करने हैं, 7 में सॉरी, देन यू विल गेट व्हाट? दिस कोलेस्ट्रॉल. शाबाश. So this is the Lippincott diagram. It is seems to be very pretty difficult for you, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दी है. आपने जिस तरह मैंने साइकिल बताई है, जिस तरह मैंने आपको याद कराया है, आपने उसी तरह याद करना है. अब मैं आपको इसकी असाइनमेंट दूंगी. राइट डाउन दी सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ये आपने अपलोड करने हैं अपने ग्रुप में. सो दिस इज़ दी बायोसिंथेसिस समरी. बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी मैंने कराई है, इस तरह भी आप कर सकते हैं. और आपको पता है कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिक कंट्रोल लाइक विटामिन डी, प्रोजेस्टेरॉन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं, विटामिन डी भी से होता है. सो रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस. अब रेगुलेशन की हम बात करें, मेनली मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व होते हैं द रेगुलेटरी स्टेप दैट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है. ये आपने लिपिनकॉट से करना है प्लीज़. ये जो बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल और इसकी रेगुलेशन ये लिपिनकॉट से करनी है आपने. बेशक डायग्राम्स जो हैं वो आप मेरी स्लाइड से देखें. फीडबैक इनहिबिशन है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है, रोल ऑफ हार्मोन एंड न्यूट्रिशनल रेगुलेशन है. जब कॉम्पिटेटिव की बात करें एंड फीडबैक इनहिबिशन, तो स्टैटिन ड्रग्स हैं, लेवोस्टैटिन, मेवास्टैटिन. ठीक है, दीज आर दी रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स ऑफ HMG कोए रिडक्टेज. मैंने आपको कहा जब अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूँ, राइट डाउन दी रेट लिमिटिंग स्टेप, तो आपने फिर ये वाला बताना है. तो ये एंजाइम पे कौन इसे इनहिबिट कर रहा है, कौन इसे हेल्प कर रहा है. ठीक है, HMG कोई रिडक्टेज को बाइल एसिड, कोलेस्ट्रॉल खुद भी इसे इनहिबिट कर रहा है, मेवेलोनेट भी इनहिबिट कर रही है, स्टैटिन ड्रग्स भी इसे इनहिबिट कर रही है. ठीक है, तो दे आर यूज्ड टू डिक्रीज प्लाज्मा लेवल इन पेशेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रॉलिज्म. फीडबैक इनहिबिशन ये आप उसमें पढ़ेंगे, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा कि किस तरह. देखें, HMG कोई रिडक्टेज ये एंजाइम हमारी बॉडी में ही है. ठीक हो गया, और ये जब इसके साथ फॉस्फेट आके लग जाता है ना, तो ये इनएक्टिव हो जाता है. जब इसका हम फॉस्फेट हटा देते हैं तो देन दिस बिकम एक्टिव. ये एक्टिव कब होता है? एक्टिव ये तब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की डिमांड बढ़ जाती है कि देयर इज़ अ लेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन अ बॉडी, सो वी नीड कोलेस्ट्रॉल. तो इसके अंदर क्या होता है, फिर आप इन द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज ये प्रोटीन को हटा के इसे एक्टिव कर देता है. ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जो है कोलेस्ट्रॉल है और ये सिग्नल भी जा रहा है मेवेलोनेट से, ये सिग्नल भी जा रहा है कि वी नीड मोर एंड मोर. क्या कि अब जाके जो इसको कहते हैं, ये जो आपका SREBT ये बाइंडिंग प्रोटीन है, ये एलिमेंट है, स्टीरॉल रेगुलेटरी
एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, स्कैप कहते हैं, और ये स्कैप है, ठीक है। स्कैप हो गया ये स्टीरॉल एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, रेगुलेटिंग बाइंडिंग प्रोटीन, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होती हैं, और ये गॉल्गी अपरेटस से जब ये कम है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कम है, तो तब हाउ HMG CoA reductase are going to help to initiate the synthesis of more and more HMG CoA reductase, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के अंदर बना सके। तो यहाँ से प्रोटीओलिटिक क्लीवेज होता है। स्टीरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन DNA में जाती है। यहाँ पे ऑलरेडी उसका जो रेगुलेटरी एलिमेंट प्रेजेंट होता है स्टीरॉल का, जिसे पता है उसमें HMG CoA बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर RNA मैसेज लेके जाता है, और ट्रांसलेशन होती है, फिर आपका नई प्रोटीन या एंजाइम बन जाता है, जो कि बॉडी के अंदर आपकी मोर एंड मोर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन भी कहते हैं रोल ऑफ हार्मोन, जैसे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन बाय फॉस्फोराइलेशन है डीफॉस्फोराइलेशन। तो इसमें जो काइनेजेस हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज करेंगे, ठीक है, और ग्लूकोज क्या करता है वो, अब हम देखें HMG CoA रिडक्टेज में इंसुलिन इसको फॉस्फेटेज इनऑर्गेनिक को क्या करे, इसकी फॉस्फेट को रिमूव कर देता है, इससे क्या कर रहा है HMG CoA को enhance कर रहा है। So you have to activate to form more and more cholesterol. So we have ample amount of glucose in it. So go and make more and more cholesterol. जबकि ग्लूकागॉन इसे रोकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल याद रखिएगा वेल फेड कंडीशन में बनता है। बॉडी में प्लीज़ याद रखिएगा दो तरह की कंडीशंस हैं, वेल फेड कंडीशन है, स्टार्व कंडीशन, जब रोज़ा रखा हुआ भी आता है। तो वेल फेड कंडीशन में जो हार्मोन होगा वो इंसुलिन होगा, वो एक्टिवेट कर रहा है हर एक को, ग्लूकोज ज़्यादा है, खुशहाली है बॉडी के अंदर। जब ग्लूकोज कम हो जाता है और ग्लूकागॉन फिर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और ग्लूकागॉन उन चीज़ों को ख़त्म करेगा, जो मतलब स्टॉप करेगा, जो चीज़ें इंसुलिन जिनको कैरी होती हैं कि अब आप बनाएं वेल फेड कंडीशन। तो HMG CoA रिडक्टेज को ग्लूकागॉन स्टॉप करेगा, जबकि कैसे स्टॉप करेगा, बाय फॉस्फोराइलाइज करके, इसको P अटैच करके, ठीक है, और ये इंसुलिन इसकी फॉस्फेट को रिमूव करके इसे एक्टिव कर देगा। न्यूट्रिशन रेगुलेशन में कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट्स विल डिक्रीज इन ओवरसिंथेसिस, ठीक है। सो वेरिएशन ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, द नॉर्मल सीरम है 150 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हाई कोलेस्ट्रॉल कंसनट्रेशन आप देख सकते हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट हैं, जिन्हें किडनी का नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में भी ज़्यादा हो सकता है, फेमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रॉलीमिया में भी, और हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में, ठीक है। ये हाइपोकोलेस्ट्रॉलीमिया है, सीक्वेंसेस क्या है, किसमें एथरोस्क्लेरोटिक प्लैक बनता है, ऑक्सीडाइज्ड LDL, ठीक है, और हार्ट अटैक होता है फिर जब ये नैरो हो जाता है। रोल ऑफ डाइट इन रेगुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, polyunsaturated fatty acid हैं, avoid cholesterol rich diet, take और advise more and more dietary fibers, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। रेगुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, फिजिकल एक्सरसाइज, आप पेशेंट को हमेशा कहें कि एक्सरसाइज करें, वॉक किया करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपनी लाइफस्टाइल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहना, खाते रहना है एक ही जगह पे, आप सबसे भी है, वॉक किया करो, आजकल सैर किया करो, चलो बाहर नहीं निकल सकते तो घर में ही एक्सरसाइज ज़रूर किया करो, ठीक है। एंड हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स होती हैं जिनके आप यूज कर सकते हैं। सो मेक योर एंड योर पेशेंट्स हार्ट में, इर्द गिर्द वालों का हार्ट हेल्दी रखने के लिए अभी से आप अच्छी एडवाइस करो खाने। सो अ 32 years old heavy smoker developed a sudden crushing chest pain. He was admitted to the casualty department. Myocardial infarction was confirmed by ECG and high cardiac troponin concentration. On examination, patient had tendon xanthoma on hands and thickened Achilles tendon. There was a strong family history of coronary heart disease. His father had died coronary bypass after at the age of 40. His cholesterol was 10 millimole, यानी कि 390 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, कितना ज़्यादा है, ठीक है। So narrowing of the arteries and increased cholesterol. Thank you.
very much. Guard your heart, guard your patient's heart, your surrounding. ठीक है, कोई आपको समझ नहीं आता जहाँ ये अपलोड हो रहा है, आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हो. थैंक यू सो मच.